Next we will be solving sixth question of the sheet. So sixth question, we have to find the value of cos 12 degrees into cos 24 degrees into cos 36 degrees into cos 48 degrees into cos 72 degrees into cos 84 डिग्रीज। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 12 इंटू cos 24 इंटू cos 36 इंटू cos 48 इंटू cos 72 इंटू cos 84 डिग्रीज। अब बताइए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इन सबकी इंडिविजुअली वैल्यूज निकालें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें। बट डू यू थिंक इज दैट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? I'll say absolutely not. This is not the correct way at all to solve this question because इन सब की इंडिविजुअली वैल्यूज निकालना ही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके तो we'll get a big calculation which is not possible. Rather, the smart way to solve such question would be कि हम इन सभी के बीच में रिलेशन निकालें। ये जो एंगल्स दिए हैं ना, इनके बीच में रिलेशन निकालें। अब रिलेशनशिप्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो इनमें से दो एंगल्स अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, दैट इज उनका समेशन 90 डिग्री हो, या फिर दो एंगल्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, दैट इज उनका समेशन 180 डिग्रीज हो, या फिर इन सारे एंगल्स के बीच में ही कोई आपस में रिलेशन हो। तो देखते हैं कि ऐसा कोई रिलेशन यहाँ एग्जिस्ट करता है या नहीं। सो क्या आपको यहाँ दो पेयर्स दिख रहे हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो? सो आई कैन नॉट सी एक्चुअली अ पेयर ऑफ एंगल्स हियर विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, नीदर वी कैन फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। कोई भी ऐसे एंगल्स नहीं मिले जिनका सम 180 डिग्रीज भी हो। सो अब कुछ और देखते हैं, इन एंगल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, सी 12 डिग्रीज, देन आई हैव 24 डिग्रीज, सो 12 इंटू 2 इज 24, देन आई हैव 24 इंटू 2 एज cos 48 डिग्रीज। सो ये दोनों तीनों एंगल्स के बीच में मुझे रिलेशन मिल रहा है दैट दे आर ट्वाइस ऑफ ईच अदर। सो लेट मी राइट cos 12 degrees, cos 24 degrees and cos 48 degree together. Similarly, I can see a relation here, cos 36 degrees and cos 72 degrees. 36 into 2 is 72. So we have one more pair, that is cos 36 degrees into cos 72 degrees. Perfect. Now the only angle remaining is cos 84 degrees. Is 84 fitting in somewhere? No, not. क्योंकि यहाँ 36 है, फिर 72 है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 154 डिग्रीज होगा विच यू कैन नॉट गेट, और यहाँ पे करेंगे तो नेक्स्ट वुड बी कमिंग इज 96 डिग्रीज. ओके, बट वी डू नॉट हैव, वी हैव 84 डिग्रीज, बट वी हैव अ रिलेशन बिटवीन 84 and 96. सी what is 96 degrees plus 84 degrees? It is 180 degrees, which means 96 and 84 are supplementary angles. True. So I can write cos 84 as cos 180 degrees minus 96 degrees. So even this angle is utilized now, and I know cos pi minus theta is nothing but minus cos theta. So cos 180 minus 96 degrees क्या हो जाएगा? Minus cos 96 degree. So now we are left with minus cos 12 degrees, cos 24 degrees, cos 48 degrees into cos 96 degrees into cos 36 degrees into cos 72 degrees. Perfect. So we have, if I consider 12 as theta, so we have cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta into cos 8 theta, and we have cos phi into cos 2 phi. Okay. Now I want to show you something interesting here. Okay. Let us say हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, cos theta into cos 2 theta into cos 2 to the power 2 theta. So let me write this as cos to the power 1 theta 2 theta till cos 2 to the power n minus 1 theta. अब बताइए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम केस है यहाँ पे, थीटा 2 थीटा टू द पावर 2 थीटा
पावर 3 थीटा एंड सो ऑन. सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय साइन थीटा. Okay, so now as soon as I multiply and divide this equation by sin theta, let us say what we have. हमें यहाँ मिलेगा sin theta into cos theta. And what is sin theta into cos theta? Is sin 2 theta by 2. So we are left with sin 2 theta upon 2 sin theta into cos 2 theta into cos 2 square theta into cos 2 to the power n minus 1 theta. ठीक है. Now what is sin 2 theta into cos 2 theta? I know this can be replaced by sin 2 square theta and a 2 in the denominator. Now what is sin 2 square theta into cos 2 square theta? This can be replaced by sin 2 cube theta और यहाँ पे फिर sin 2 cube theta into cos 2 cube theta आ जाएगा. So ultimately when we will solve this, what we will be left with? We will be left with sin 2 to the power n theta upon 2 to the power n into sin theta. Is that true? So this equation, which is cos theta into cos 2 to the power 1 theta into cos 2 square theta equal cos to the power n minus 1 theta, this boils down to sin 2 to the power n theta upon 2 to the power into sin theta. क्लियर है कैसे किया? यहाँ से क्लियर है. देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? हमें मिलेगी 2 to the power n minus 1 sin theta sin 2 to the power n minus 1 theta और यहाँ मिलेगी cos 2 to the power n minus 1 theta. ये लास्ट सीरीज मिलेगी और इसके बाद जब we can write this as sin to the power 2n theta, एक और डिनोमिनेटर में 2 आएगा 2 to the power n into sin theta. So the important identity that we have proved right now is we have proved that cos theta into cos 2 theta into cos 2 to the power 2 theta till cos 2 to the power n minus 1 theta, this is equals to sin theta to sin 2 to the power n minus 1 theta sin 2 to the power n theta upon 2 to the power n sin. क्लियर है? हमने रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश किया? आसान था. Now let us use this relation in this question. Okay, so यहाँ what we have is cos 12. So if 12 is theta, then it is 2 theta, 2 to the power 1 theta and 2 cube theta. This would be cos 2 to the power 4 into 12 degrees upon 2 to the power 4 into sin 12 degrees. Clear? And यहाँ पे what we will have, this will turn out to be 36 degrees as theta. Then we will have cos 2 to the power 2 into 36 degrees upon 2 to the power 2 into sin 36 degrees. Is that true? Now what is this equals to? This is equals to cos 16 into 12 degrees, which would be equals to 192 degrees upon 2 to the power 4 sin 12 degrees, and this would be equals to cos 4 into 36 degrees, which is 144 degrees upon 2 square sin 36 degrees. Perfect. Now what is cos 192 degrees?
and we have a minus sign here which is being carried forward. Okay. So what is cos 192 degrees? Can I write this as cos 180 plus 12 degrees? I can. So this would be equals to cos 180 plus 12 degrees. So which is, we have sine terms here, not cos, sorry. This is even sine here. This is sine 2 to the power n theta. Because the formula is sine 2 to the power 2 n theta. Okay. Now what is sine 192 degrees? I know sine 192 degrees could be written as sine 180 plus 12 degrees. And what is sine pi plus theta? It is minus sine theta. So we will be having minus sine 12 degrees. 192 degrees can be written as 180 plus 12 and sine pi plus theta is minus sine theta. And 144 degrees can be written as 180 minus 36 degrees. Can we write? Clear? 144 and 36 are a pair of supplementary angles. So this is sine pi minus theta, which would be equals to sine theta. So we will have this as sine 36 degrees upon 2 to the power 6 into sine 12 into sine 36 degrees. ये cancel हो जाएंगे and what will be left is 1 upon 2 to the power 6, which is equals to 1 upon 64. So this complete multiplication of cosines is equals to 1 upon 64. और अब सोचिए अगर इसी इक्वेशन को हम गलती से भी ऐसा सोचते कि हम सबकी वैल्यूज निकाल के मल्टीप्लाई कर दें या फिर मैं ऐसा करती, एक और अप्रोच हो सकती थी जो हम सोच सकते थे. मैं यहाँ पे 12 into 24 को लिखती cos a into cos b as cos a plus b by 2 into cos plus cos a minus b by 2 divided by 2 और फिर प्रोसीड करती, तो वो भी यहाँ पे किसी वुड बी फ्रूटफुल बिकॉज इन सब के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी हमें कोई रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश होता. सो ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं द इम्पोर्टेंट पार्ट इज ट्राई टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द एंगल्स गिवन हियर. जैसे अभी हमने क्या रिलेशन एस्टैब्लिश किया, थीटा, 2 थीटा, 4 थीटा एंड सो ऑन. सो ऐसे रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश कीजिए और फिर उनको सॉल्व कीजिए. परफेक्ट. इंडिविजुअली सॉल्व वैल्यूज लेके सॉल्व करना इज नॉट अ राइट अप्रोच एट ऑल. नाउ लेट अस प्रोसीड टू 7th क्वेश्चन. The 7th question is, it is even a type 6 question के ही जैसा है. They say theta is lying between 0 to 180 degrees और इस केस में we have to evaluate the value of 2 plus under root 2 plus under root 2 plus this continues on till under root 2 into 1 plus cos theta. हमें इस पूरे की वैल्यू एवेल्युएट करनी है and what we have been given is there being n number of 2s. So the number of 2s that have been written here are n. हमें इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है. अब बताइए कैसे करेंगे. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. आई मीन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वी सी सो मेनी अंडर रूट्स एंड ऑल एन टर्म्स है, बट इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है. देखिए कैसे. क्या आप मुझे कोई बताएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इट्स वेरी 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 इजी. आई टेल यू इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. एग्जामिनेशन में दिस इज लाइक अ चॉकलेट पाई क्वेश्चन, मतलब वेरी इजी. You can solve it, accurately solve करेंगे and you will get good marks. It is a time saver one. See, देखिए, what we have is here under root 2 into 1 plus cos theta. 2 into 1 plus cos theta. What is 1 plus cos theta? I know that is 2 into cos square theta by 2. So अब देखिए मेरे पास अंदर क्या बचेगा. We'll be having 2 okay, what will be this under root? With 2 into 1 plus cos theta को मैं लिख देती हूँ 2 cos square theta by 2.
and what is this equals to? We have 2 into 2 cos square theta by 2, so under root would be equals to C. And what we have one more thing in the question, that is theta is lying between 0 to 180 degrees, which means theta by 2 would be lying between 0 to 90 degrees, which means cos theta by 2 is going to be positive क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो मैं जब इस अंडर रूट को निकालूंगी तो मैं बाहर सेफली पॉजिटिव साइन कंसिडर कर सकती हूँ. सो व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इज दिस विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस कहीं पे अब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इट वुड बी 2 प्लस 2 cos square theta by 2. And what can I write? 2 plus under root 2 cos square theta by 2. This would be equals to 2 into 1 plus cos square theta by 2. So it would be 2 into cos square theta by 2 square. So which would be equals to, अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, we'll be having 2 plus 2 cos square theta by 2 to the power 2. And similarly this will keep on continuing. So at last we will be having is 2 into 2 plus cos square theta upon 2 to the power n minus 1 under root, and which would be equals to 2 into cos theta upon 2 to the power. Since there are n number of 2's, so यहाँ पे 2 to the power n हो जाएगा. क्लियर है? जितने नंबर ऑफ 2's है इतने ही यहाँ पे नीचे 2 to the power n आ रहे हैं. ये हम समझ पा रहे हैं seeing the nature of the question. क्लियर? I told you very easy question, just एक ही फॉर्मूला लगाना, that is 1 plus cos theta is nothing but equals to 2 cos square theta by 2. और इसी फॉर्मूला को यूज करके हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एंड आई टोल्ड यू क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट इफ यू ट्राई टू एनालाइज दिस सो इट इज वेरी इजी. सो इस टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली एग्जामिनेशन में आपके टेम्परामेंट को चेक करने के लिए होते हैं. अगर आपका टेम्परामेंट खराब है, यू आर टेंस एंड यू फील लाइक देखते से ही लगेगा अरे बाप रे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, आई वोंट अटेम्प्ट इट, इट विल सॉल्व, इट विल टेक माई टाइम और मे बी सोल्यूशन आएगा नहीं. सो यू शुड नॉट डू, एटलीस्ट यू शुड रीड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. हर क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए और सोचिए कि इसमें क्या अप्रोच लगेगी. इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. एक फॉर्मूला से ये सारा अंडर रूट सॉल्व होता चला जाएगा. सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग क्वेश्चन. बट एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन देख के यूजुअली हड़बड़ा जाते हैं कि बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड से दिख रहा है, नहीं सॉल्व कर पाएगा. but जब ध्यान से देख के समझते हैं तो लगता है कि बाद में रियलाइज होता है कि अरे इतना ईजी क्वेश्चन था, मैं छोड़ आया या छोड़ आई, बहुत ही इसके था, ऐसे ही आंसर निकालता, मुंह पे भी आंसर निकाल के बता देंगे कभी कभी. तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि इन सब चीजों का एग्जामिनेशन में ध्यान रखना चाहिए. नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन. ओके, सो कैन आई इरेज द 6th क्वेश्चन नाउ? नोट डाउन कर लिया आप सभी ने? ओके, नाउ लेट्स स्विच ऑन टू 8th क्वेश्चन ऑफ द शीट, व्हिच इज सेइंग, टेलिंग if A, B and C are angles of a triangle, we have to show that tan square A by 2 plus tan square B by 2 plus tan square C by 2 is greater than or equals to 1. So 8th question में हम जानते हैं A, B and C are angles of a triangle. और since A, B, C are angles of a triangle, so we can write this relation A plus B plus C is going to be equals to pi radians, angle sum property. ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? tan square A by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c by 2, this guy is greater than or equals to 1. This is what we have to basically prove. That is the minimum value of tan square a by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c by 2 is 1. Okay, this is what we have to prove, and we have a plus b plus c is equals to pi radians because these are the angles of a triangle. So अब इनको सॉल्व करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज करते हैं, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे इस क्राइटेरिया को सॉल्व एस्टैब्लिश करते हैं या फिर सेटिस्फाई करते हैं. तो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इज पाई रेडियंस. सो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियंस. और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ
a plus b by 2 will be equals to pi by 2 minus c by 2. तो यहाँ से हमें क्या मिला कि a plus b by 2 और c by 2 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दैट इज देयर सम इज 90 डिग्रीज. अब इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों से टैंजेंट ले लेते हैं. टैंजेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी हमें रिलेशन टैंजेंट्स के बीच में एस्टैब्लिश करना है. ठीक है, तो लेट अस टेक tan on both the sides. तो I have tan a plus b by 2 is cot c by 2, because tan pi by 2 minus theta is cot theta. And what is tan a plus b by 2? It is tan a by 2 plus tan b by 2 upon 1 minus tan a by 2 into tan b by 2. This is equals to 1 upon tan c by 2. And what would this be equals to? See, this would be equals to tan a by 2 into tan c by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan a by 2 into tan b by 2 this would be equals to 1. Perfect. So what do we have here is tan a by 2 plus tan b by 2 plus tan b by 2 plus tan c by 2 plus tan a by 2 into tan b by 2 is nothing but equals to 1. So ये relation है between angle a by, this is the relation between tan a by 2, tan b by 2 and tan c by 2. और इस relation के basis पे भी क्या relation establish करना है, हमें ये establish करना है, that is tan square a by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c by 2 is greater than or equals to 1. क्या इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि ये रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होगा? बहुत ही आसान हो गया है. हाउ विल बी एस्टैब्लिश दिस? जल्दी से सोचिए. देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, tan स्क्वेयर a by 2 प्लस tan स्क्वेयर b by 2 प्लस tan स्क्वेयर c by 2 माइनस 1. ठीक है, सो बेसिकली हमें यहाँ क्या प्रूव करना है कि दिस इज ग्रेटर देन 0. इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है. और अब 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इस रिलेशन से मैं 1 की जगह लिख सकती हूँ tan a by 2 tan b by 2 इंटू माइनस tan b by 2 tan c by 2 माइनस tan a by 2 tan b by 2. क्लियर? ये मैं आसानी से लिख सकती हूँ. यहाँ तक तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए. नाउ अब देखिए, वी हैव tan स्क्वेयर a by 2 tan स्क्वेयर b by 2 और यहाँ पे है माइनस tan a by 2 माइनस tan b by 2. फिर है tan स्क्वेयर b by 2 tan स्क्वेयर c by 2 माइनस tan b by 2 tan c by 2 और tan a by 2 tan c by 2 और वहाँ b by 2 और वहाँ पे माइनस tan a by 2 tan b by 2. पर अब इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, जैसे ही मैं 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ, सो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद दिस. लेट अस टेक tan स्क्वेयर a by 2 प्लस tan स्क्वेयर b by 2 माइनस 2 tan a by 2 tan b by 2. ठीक है, दिस वुड बी one pair that will form plus now tan square b by 2 tan square c by 2 minus tan b by 2 tan c by 2 and one more that we will have is tan square c by 2 tan square a by 2 and minus 2 tan a by 2 tan c by 2. So we will have tan square a by 2 tan square c by 2 minus 2 tan a by 2 tan c by 2. So I know this is nothing but equals to 1/2
tan a by 2 minus tan b by 2 whole square plus whole square of tan b by 2 minus c by 2 whole square and plus tan a by 2 minus tan c by 2 whole square. So we have a positive term here, a positive term here and a positive term here. So this is greater than or equals to 0 बिकॉज सारी ही टर्म्स पॉजिटिव है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम तो हमेशा 0 से बड़ी, मैक्सिमम जो होगी वो तो इन्फिनिटी तक जा सकती है. तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली प्रूव that this guy is greater than or equals to 0. Tan square a by 2 plus tan square b by 2 plus tan square c by 2 is greater than or equals to 1. क्लियर है? क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट ही ज़्यादा था इसमें और इस चीज़ को निकालना और समझना इंपॉर्टेंट. तो इसको आप एक रिलेशन के तरीके से भी याद कर सकते हैं कि फॉर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज tan a by 2 into b by 2 into tan b by 2 plus tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 is equals to 1. So if you can, I'll advise remember this as a relation for angles of a triangle. इसी तरीके से जब ये शीट एंड हो जाएगी तो मैं आपको कुछ और ऐसी लिस्ट दूंगी which will be relating relations between angles of a triangle. जैसे ये है वैसे ही वहाँ पे होता है sin 2 थीटा प्लस sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c. तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स. सो एक बार ये शीट कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको उन सारी रिलेशंस की लिस्ट भी दे दूंगी. इनफैक्ट हम उनके प्रूफ भी देख लेंगे ऐसा हुआ तो. सो ये क्वेश्चन क्लियर था. अब 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सबने नोट डाउन कर लिया? मैं इसे रेस कर दूं ना? ओके चलिए अब 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो 9th क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3 प्लस 3 इसकी वैल्यू -4 से 10 के बीच में ही लाई करती है. सो हमें प्रूफ करना है कि 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3. What is pi by 3 radians equals to? You know this is equals to 60 degrees और हम 60 degrees की वैल्यूज जानते हैं. ओके प्लस 3 this is less than or equals to 10 for all real values of theta. ओके हमें प्रूफ करना है इस रिलेशन इनइक्वालिटी को. अब आई थिंक ये तो सभी जानते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं. हमने याद है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की का एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था? डू यू रिमेम्बर द रिलेशन? हमने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था जो कहता था a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसकी वैल्यू हमेशा -√a² प्लस b² से प्लस √a² के b² के बीच में लाई करती है. और प्रूफ क्या था कि इसको √a² प्लस b² से डिवाइड कर दीजिए तो हमें क्या मिलेगा? a/√a² प्लस b². लेट अस से दैट इज इक्वल्स टू सम cos phi and what have let us say b/√a² plus b² is some sin phi. So this would be equals to cos sin theta plus phi और sin theta plus phi की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 और मिनिमम होती है -1. तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -√a² प्लस b² और मैक्सिमम होगी √a² प्लस b². इसी रिलेशन को एस्टैब्लिश करके ऑलमोस्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो हमारा एम क्या है इस वक्त कि हमें इससे इस फॉर्म में रिड्यूस करना है a cos थीटा प्लस b sin थीटा. सो इसको कंसिडर करते हैं. सबसे पहले बस इसी चीज को लेके चलते हैं. अभी 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस पाई बाई 3. cos थीटा प्लस पाई बाई 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos theta into cos pi by 3 and what is cos 60 degrees? I know this is 1/2 minus sin theta into sin pi by 3 that is sin 60 degrees which is √3/2 plus 3. Okay, so we have 5 plus 3/2 cos theta true minus
3√3/2 sin theta plus 3 एंड दिस इक्वेशन वाज वैलिड जब यहाँ पे माइनस साइन भी हो. ओके, आई होप ये रिलेशन सभी को याद होगा. जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा था तब हमने इस रिलेशन को एस्टैब्लिश किया था. ट्रू. नाउ this can be written as, so what we have is 5 plus 3/2 cos theta, or I can write this as 13/2 cos theta minus 3√3/2 sin theta plus 3. So now we have something of the form a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी √a² प्लस b स्क्वायर और मिनिमम होगी माइनस √a² प्लस b स्क्वायर. सो वी हैव 13² प्लस अपॉन 2². ये एक इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक इसकी मिनिमम वैल्यू होगी. सो व्हाट इज 13² अपॉन 2²? इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बता दीजिए कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आने वाली है और मिनिमम क्या आने वाली है. जल्दी से बताइए दीजिए. व्हेन यू विल सॉल्व दिस वुड बी इक्वल्स टू नथिंग बट √49 विच इज इक्वल्स टू 7. सो यहाँ से मुझे क्या मिला? 13/2 cos थीटा प्लस minus 3√3/2 sin theta. It lies between +7 to -7. True. Which means 13/2 cos theta minus 3√3/2 sin theta plus 3. This will lie between -7 plus 3 -4 and 7 plus 3 10. और इसी को हमें यहाँ पे प्रूव करना था. सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे प्रूव किया? इजी सा क्वेश्चन था, बस यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था. तो बेसिकली इस तरीके की इनइक्वालिटीज पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें cos थीटा और sin थीटा की टर्म्स एस्टैब्लिश हो सकती हो. तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर इस रिलेशन को यूज करने की कोशिश कीजिएगा. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दैट इज 10th question of the sheet, which says we have to find the minimum value of cos 2 phi plus cos phi. हमें cos 2 phi plus cos phi की मिनिमम और मैक्सिमम लेटर से दोनों ही वैल्यूज निकालनी है. ओके, सो cos 2 phi plus cos phi. cos 2 phi को मैं लिख सकती हूँ 2 cos square phi minus 1 plus cos phi. True. So we can write this as -1 plus 2 cos square phi plus 1/2 cos phi. मैं बताती हूँ मैं बेसिकली क्या करना चाह रही हूँ. मैं बेसिकली हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक बन गई है cos phi के टर्म्स में, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. बिकॉज मैं एक रिलेशन जानती हूँ, वो ये है कि cos phi की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है -1 और +1, और इस एक्सप्रेशन की भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसी चीज पे गवर्न होती है. ठीक है, cos phi की यही रेंज इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू गवर्न करने वाली है. तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको cos phi के टर्म्स में परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ, फिर हम उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे. देखते हैं कैसे. सो वी हैव -1 plus 2 cos square plus 1/2 cos phi. अब मैं क्या करती हूँ, प्लस 1/2 cos phi प्लस ठीक है. ओके,
1/4 होल स्क्वायर. So this is a square plus b square 2 1/4 into cos phi. ओके, सो यहाँ पे हमने इससे मल्टीप्लाई किया, दिस इज 1/16. सो यहाँ पे हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/8. ट्रू, इज दैट ट्रू? ओके, सो दिस इज -9/8 प्लस 2 और ये मैंने एस्टैब्लिश कर दिया cos phi प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 का होल स्क्वायर. So we have reduced this equation to -9/8 plus 2 cos phi plus 1/4 whole square. Now what is going to be the minimum value of this expression? See, ये constant है यहाँ पर, ठीक है, ये भी constant है. So इसकी वैल्यू सिर्फ cos phi पे गवर्न होती है और हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है एक, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा. तो इस परफेक्ट स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी 1 + 1/4 बिकॉज cos phi की मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? वो होगी 0, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती. और मिनिमम तब होगी जब cos phi -1/4 होगा, विच इज पॉसिबल बिकॉज cos phi 1/4 इसी रेंज में आता है. सो मिनिमम वैल्यू फॉर दिस वुड बी व्हेन दिस परफेक्ट स्क्वायर वुड बी 0. सो मिनिमम वैल्यू वुड बी -9/8 when cos phi is equals to -1/4 और मैक्सिमम क्या होगी? इट वुड बी -9/8 प्लस 2 into 1 plus 1/4 which is 5/4 whole square. And when will this value occur? When cos phi assumes its maximum value. क्लियर है? तो इस तरीके के रेंज पे बेस्ड जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, या अगर cos phi और sin phi टर्म की टर्म्स मिल जाए तो फिर इस रिलेशन को एस्टैब्लिश करें, इस रिलेशन को यूज करने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर यहाँ पे या तो cos थीटा या sin थीटा का स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सिर्फ cos थीटा और sin थीटा होगा तो अब वैल्यूज डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है. बट इस तरीके से अगर स्क्वायर बन जाए तो फिर आसान होता है. क्वाड्रेटिक हो तो स्क्वायर और अगर लीनियर हो तो फिर cos थीटा और sin थीटा के टर्म्स में ही हम निकाल लेंगे. क्लियर? इसको नोट डाउन करें दोनों क्वेश्चंस को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए अब 11th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो 11th क्वेश्चन सेज if a lies between 0 to 3 and b lies between 0 to 3 and the equation x square plus 4 plus 3 cos ax plus b is equals to 2x has at least one solution, then we have to find the value of a plus b. So this is even a question based upon range of trigonometric questions, almost 9th और 10th question जैसा ही है और ऐसे कॉन्सेप्ट भी कुछ वैसे ही लगेंगे. तो देखते हैं. a is lying between 0 to 3, okay, and similarly b is lying between 0 to 3 और हमें क्या दिया है? इक्वेशन x square plus 4 plus 3 cos ax plus b, this guy is 2x. okay, this has at least one solution. तो हमें पता करना है a plus b की वैल्यू. अब देखिए 9th क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया था? a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का. फिर हमने सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक थी. 9th में हमारे पास cos थीटा और sin थीटा की टर्म्स थी तो हमने वो अप्रोच यूज की थी. 10th क्वेश्चन में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक थी, इसलिए हमने cos थीटा का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास cos थीटा लीनियर फॉर्म में है. सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ये कॉन्सेप्ट भी देखते हैं. अब देखिए cos ax plus b, मैं जानती हूं कि cos ax plus b की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 1 होगी. यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का गवर्निंग फैक्टर होगा. ये तो अभी तक हम सभी समझ चुके हैं कि इस तरह की क्वेश्चन आए सबसे पहले तो इस चीज को देखना है. अब देखिए कैसे इसे यूटिलाइज करते हैं. क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? एक्स स्क्वायर -4 प्लस 4 माइनस 2x -3 cos ax प्लस, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ
और अब मैं यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती हूँ. देखिए x प्लस 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. We have x minus 1 whole square plus 3. This is equals to x square plus 4 minus 2x, and this is equals to minus 3 cos ax plus. अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है. Now here the situation is this value x minus 1 plus 3, x minus 1 whole square plus 3. 3 is a positive number and this is a positive number because square है. So this is always going to be greater than or equals to 3. True. And what about here? This guy minus 3 cos ax plus b, ये तो हमेशा 3 से छोटा होगा और माइनस 3 से बड़ा होगा. ये वाली चीज हमेशा 3 से बड़ी होगी और ये हमेशा 3 से छोटी है. और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में इक्वालिटी एस्टैब्लिश करनी है. सो इक्वालिटी कब हो सकती है, जब दिस इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3. दिस इज द ओनली एंड ओनली कंडीशन व्हेन दीज टू कुड बी इक्वल. ट्रू. अंडरस्टैंडिंग. कॉन्सेप्ट क्लियर है जो हमने यहाँ एस्टैब्लिश किया. व्हाट वी सॉ वाज दिस गाय इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 and this guy is less than 3 because cos phi is always less than or equals to 1. So what we have is x minus 1 whole square plus 3. ये तो 3 से बड़ा है और cos 3x plus b तो 3 से छोटा है. तो इनके बीच में इक्वालिटी कब एस्टैब्लिश होगी, जब when this is equals to 3 and this is equals to 3. जब x minus 1 square plus 3 this is equals to 3, this is only possible when x is equals to 1. So here x is equals to 1 and minus 3 cos ax plus b will be equals to 3. This is possible only when minus cos ax plus b is equals to 1, or I can say cos ax plus b is equals to minus 1. True. Am I clear? Which means, and I know x is equals to 1 from here, which means cos a plus b has to be equals to minus 1. And this is possible for what values? For all odd multiples of pi. देखिए pi, 3 pi, 5 pi, इन सभी पर cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, minus 1. इवन मल्टीपल्स पे क्या होती है 1 और ऑड मल्टीपल्स पे क्या, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे क्या होती है -1. तो पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. और हियर माइनस पाई, -3 पाई, इन सब पे cos थीटा की वैल्यू होती है -1. सो वी शुड हैव a प्लस बी एज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. अब देखिए इसकी वैल्यू भी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ एक कंडीशन दी है. a 0 से 3 के बीच में लाई करता है और b भी 0 से 3 के बीच में लाई करता है. तो अगर मैं कहूँ सबसे पहली चीज विच मीन्स a प्लस बी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वैल्यूज तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाती है. अब देखें इफ आई से a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई विच इज इक्वल्स टू 3.14. सो दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल because for this a should be between 0 to 3 and b would be between 0 to 3. Next would be a plus b equals to 3 pi. And I'll say this value is not acceptable because अगर a 0 से 3 के बीच में और b 0 से 3 के बीच में तो इनका summation 3 into pi हो ही नहीं सकता because this would be something around 3 into 3.14 which is greater than 9, which is not possible because a plus b की maximum value तो 6 ही है. So the only possible value for a plus b is pi which is equals to 3.14. Clear? So this was a good question क्योंकि क्वेश्चन में टाइम सॉल्व करने में ज्यादा नहीं लगना था, कॉन्सेप्चुअली अच्छा था. और अब ये देखिए अगर आप ए और बी की रेंज नहीं कंसिडर करते और क्वेश्चन में अगर दिया होता ऑप्शन से ऑब्जेक्टिव में एक जगह पाई, एक जगह माइनस पाई पाई, एक जगह पाई 3 पाई, एक बार जगह ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो आप क्या करते जल्दी जल्दी में तो ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई वाला ऑप्शन ही क्लिक करते विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ए और बी की रेंज से इस क्वेश्चन के आंसर पे इफेक्ट पड़ने वाला है. सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम ज्यादा नहीं लग रहा था, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं था, बट कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन था.
ओके, सो आज हमने फर्स्ट से 11th क्वेश्चन तक शीट के डिस्कस किए। आज के लिए शीट डिस्कशन होल्ड करते हैं और कल हम 12 से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट ऑलमोस्ट द कंप्लीट शीट। ओके, सो लेट अस होल्ड अवर लेक्चर फॉर हियर और आप कल 12 से आगे वाले क्वेश्चंस एक बार फिर से देख के आइएगा। ओके, थैंक यू।